Hello learners, once again I would like to welcome back in my English literature class. Today we will solve the questions and answers of HOTS, life skills, values and the writing skills. Okay, so I hope that everybody are ready with these questions and you will write your answers in your copies, okay, in this video. So let us start the explanations as well as the answers also of the question. So my Mother by Dr. APJ Abdul Kalam. You can see here the picture of childhood days which has been taken from Google. And in this picture you can see that Dr. Kalam is looking very happy and sitting beside his mother. And this is the picture of Dr. Kalam, who was the president of India of his childhood days. So in this poem, My Mother, he has discussed all about his childhood days and the things and the way and the struggles and the challenges about his life during his childhood days. So let us explain the questions and we are moving towards the first question of HOTS. I hope that you all have the books and keeping in front of you the books. Question number first. How did the poet's mother act as a source of inspiration to the poet? You all know that what is the meaning of question. If you are wishing to explain it in Hindi, then I am just explaining it Hindi also. How did the poet's mother act as a source of inspiration to the poet? पोएट की माँ ने पोएट के लिए मतलब कवि की जो माँ है या फिर डॉक्टर कलाम की जो माँ है उनके लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बनी. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल आंसर विच हैव बीन shown here. The poet's mother, now look at here on my answer. The poet's mother acted as a source of inspiration for poet by changing his pain into holy power, by praying to the Almighty God 5 times. Sorry, you can write here 5, F-I-V-E, not give, God 5 times, so that he could attain the grace of God. Poet imagined his mother all in all throughout his life when the days were challenging and full of struggle. In Hindi, पोएट्स की माँ जो है, पोएट की माँ उनके लिए प्रेरणा का स्रोत इस तरह से बनी क्योंकि उनकी माँ उनके अंदर बदलाव लाना चाहती थी और उनके दर्द को उन्होंने एक पवित्र शक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, चेंज कर दिया था. और किस तरह से उनके दर्द को पवित्र शक्तियों में चेंज करने के लिए वो अपने पूरे दिन में 5 बार नमाज पढ़ती थी, या फिर अल्लाह को या फिर गॉड कह लीजिए या फिर अलमाइटी कह लीजिए. वो कम से कम 5 बार नीलिंग एंड बोइंग है ना पोएम में, वो 5 बार कम से कम उनके लिए प्रे करते थे. तो उनके जो सारे दर्द थे वो पूरी तरह से पवित्र पावर्स के रूप में, पवित्र शक्तियों के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गए. नेक्स्ट है पोएट इमेजिन हिज मदर ऑल इन ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ. पोएट जो है अपनी माँ को अपनी पूरी जीवन में सब कुछ मानता है. व्हेन द डेज वेयर चैलेंजिंग एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, जबकि उनके लिए दिन जो थे बहुत ही चैलेंजिंग थे और स्ट्रगल से भरे हुए थे. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज़. इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट line has sleeping on your lap. Let us move on the question number second, that is values. So answer is in front of you, but before answering this question I would like to read the question, explain the question, discuss the question. Okay, so sleeping, question ये है sleeping on your lap to the envy of elder brothers and sister. This is in the single inverted comma, okay, और डबल इनवर्टेड कॉमा. मतलब ये एक स्टेटमेंट है कि आप तुम्हारे गोद में बैठ करके मेरे बड़े भाइयों और छोटे बहनों के और बड़े भाइयों और बड़ी बहनों के लिए पूरी तरह से एकदम जिलस स्टेट टाइप का था. इन्वियस तो नहीं कह सकते हैं, उसको जिलस के टाइप का कह सकते हैं. वाई वेयर द एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन्वियस टू पोएट, इज इनवी गुड, डिस्कस. मतलब बड़े भाई और बड़ी बहनें जो थी उनके लिए
इतना मतलब जिलस क्यों रखते थे, क्या ये जिलस अच्छा है, अगर है या नहीं है तो उसको डिस्कस करो, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। एंड बिफोर डिस्कसिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वो अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। ही वॉज द यंगेस्ट among his brothers and the sisters, means his all brothers and sisters were elder to him. So let us explain the answer here. The above reference about Dr. Kalam comes fit because he was belonging from a poor family. मतलब जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मतलब मेरे लिए तुम्हारी गोद में बैठना मेरे भाइयों बहनों के लिए बहुत ही एकदम जिलस का था, क्योंकि ये ऊपर वाला जो रेफरेंस है ये पूरी तरह से डॉक्टर कलाम के लिए फिट बैठता है। क्यों? बिकॉज ही बिलोंगिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और ही हैड टू ज्वाइन हिज फादर एंड वर्कड एज अ हॉकर। sorry, I am really sorry because I was just discussing the questions of values. Once again let me go back. लाइफ स्किल्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा था वैल्यूज़ के। आई एम रियली सॉरी। लाइफ स्किल्स पे आते हैं। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स in man's life, but one should not lose hope. Discuss this statement with reference to Dr. APJ Abdul Kalam or reference to poet. Okay, मतलब कि जीवन में बहुत ही उतार और चढ़ाव हो सकते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं लाइफ में, बट वन शुड नॉट लूज होप। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने होप्स को, अपनी आशाओं को छोड़ना नहीं चाहिए। डिस्कस दिस स्टेटमेंट, इस कथन को हमें डिस्कस करना है विथ रेफरेंस टू डॉक्टर कलाम या विथ रेफरेंस टू पोएट। ये कवि के संबंध में इससे हमें डिस्कस करना है। सो लेट अस सी हियर द एबव रेफरेंस अबाउट डॉक्टर कलाम कम्स फिट बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली। मतलब कौन सा स्टेटमेंट कि देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन मैंस लाइफ बट वन शुड नॉट लूज द होप। ये जो है पूरी तरह से फिट बैठता है डॉक्टर कलाम की लाइफ में, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ही हैड टू ज्वाइन हिज फादर एंड वर्कड एज अ हॉकर एंड यूज्ड टू सेल द न्यूज़पेपर्स डोर टू डोर फॉर हिज अर्निंग्स सो दैट ही कुड कंटिन्यू हिज स्टडी। ये इस तरह से फिट बैठता है क्योंकि उन्हें पैसे कमाने के लिए अपने फादर के साथ भी काम करना पड़ता था। ही हैड टू ज्वाइन हिज फादर, मतलब उनके फादर वर्क करते थे तो ऑब्वियसली ही आल्सो यूज टू डू द वर्क्स विथ हिज फादर, तो वो अपने फादर को ज्वाइन करेंगे तभी तो। एंड वर्कड एज अ हॉकर, और उन्होंने एक हॉकर की तरह भी, मतलब न्यूज़पेपर जो सेलर होते हैं उनको हॉकर भी बोल सकते हैं, जो डोर टू डोर जाते हैं, ठीक है, वैसे भी उन्होंने काम किया। एंड यूज टू सेल द न्यूज़पेपर्स, और उन्होंने अखबारों को दरवाजे दरवाजे पर जा कर के बेचा करते थे। मतलब स्कूल के जाने से पहले वो क्या करते थे, पूरी तरह से वो न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने अर्निंग से की, क्योंकि 10 भाई बहनों में इतना आसान नहीं है कि एक फादर हर बच्चे को पढ़ा सके, और वो भी गरीबी के दिनों में, वो भी चैलेंजेस के दिनों में, वो भी जब वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है ना। अभी कोविड-19 चल रहा है तो आप सभी लोगों के सामने प्रॉब्लम्स है, तो सोचो उस समय तो वर्ल्ड वार चल रहा था, पूरा विश्व ही युद्ध में झुका हुआ था। सो रियली दैट डेज वॉज द वेरी चैलेंजिंग एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। इस समय तो कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं है, बहुत लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है, लेकिन उस डॉक्टर कलाम के पास कुछ भी नहीं था। वो अपनी अर्निंग करते थे और उन 10 भाइयों बहनों में खाते पीते थे, किसी तरह से रहते थे। कैसे रहते थे, बहुत सारा स्ट्रगल उन्होंने किया। और फिर आगे पढ़ते हैं, ही डिड नॉट गिव अप बट कंटिन्यूड। आफ्टरवर्ड्स ही बिकेम द साइंटिस्ट इन DRDO एंड 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इतने अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी अपने वर्क्स को, अपनी पढ़ाई को गिव अप नहीं किया, उसने छोड़ा नहीं, और बल्कि उन्होंने उसको जारी रखा। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स ही बिकेम द साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक बने DRDO में, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो साइंटिस्ट बने। और फिर उसके बाद 11th प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने। सो वी कैन से
that there may be many ups and downs in life but we should not live the way। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हमें अपने आशाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओनली दिस विल लीड अस टू सक्सेस। और यही एक हमारे सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो हमें सफलताओं की तरफ लेकर के जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज। ओके, स्लीपिंग ऑन योर लैप इनटू द sleeping on your lap to the envy to elder brothers and sisters. Why were their elder brothers and sisters envious to poet? Is envy good? Discuss। मतलब तुम्हारी गोद में बैठ करके मेरे भाइयों बहनों को, बड़े भाइयों बहनों को बहुत ही सारा जलन होता था, बहुत सारा जलन होता था। ठीक है, तो क्या ये सही है? सच काइंड्स ऑफ द इन्विटी इज गुड? तो हम कहेंगे कि बीइंग इन्वियस टुवर्ड्स समवन इज नॉट गुड। मतलब किसी के भी प्रति दुश्मनी का भाव रखना अच्छा नहीं है। बट दैट वाज नॉट द इन्वाइटी। लेकिन वो जो बचपन के दिन थे वो उसको हम लोग दुश्मनी का भाव नहीं कह सकते, बट वी कैन से दैट वाज द जीलस इमोशंस ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स। ठीक है, हियर पोएट डिस्कस द थिंग्स एंड रिम्यूनेटिंग हिज चाइल्डहुड डेज। यहाँ पर जो पोएट है उन चीज़ों को डिस्कस करता है, और रिम्यूनेटिंग मीन्स होता है पुराने दिनों में वापस जाना, और अपने पुराने दिनों में वापस जाता है, बचपन के दिनों में। पुराने दिनों में कहाँ? बचपन के दिनों में। पोएट आल्सो टॉक्स अबाउट द चैलेंजेस एंड डेज ऑफ स्ट्रगल, और उन दिनों को भी याद करता है जब उसने स्ट्रगल किया। इन दोज डेज his mother used to give him special favor, care among his elder brothers and sisters by distributing him extra chapati and her tenderly hands on his head। मतलब उन दिनों जो पोएट की माँ है उनको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केयर करती थी, और उनको फेवर भी करती थी, और उनको एक्स्ट्रा चपाती भी देती थी। अपने भाइयों बहनों में सबसे ज़्यादा उनको केयर करते थे। तो भाई ऑब्वियसली किसी के भी अगर 3-4 भाई बहन हैं, अगर उनकी माँ जो है एक ही बच्चे को थोड़ा ज़्यादा केयर करती है, ज़्यादा अफेक्शन देती है, स्नेह करती है, प्रेम करती है, दुलार करती हैं, तो और सारे जो भाई बहन हैं वो थोड़ा सा जिलस होते भी हैं और लड़ते झगड़ते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम लोग जिलस नहीं, उसको हम लोग इन्वियस नहीं बोलेंगे, उसको जिलस बोलेंगे। ठीक है, लास्ट में 10 मीन्स इस प्रकार। इन स्पेशल रेफरेंस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इट मे बी समथिंग राइट एंड समटाइम्स नॉट। समटाइम राइट, समटाइम नॉट। मतलब कभी कभी पर भाइयों बहनों के रिलेशनशिप में जब माँ ऐसी करती हैं तो कभी कभी सही भी होता है, लेकिन कभी कभी ठीक नहीं भी होता है। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट द वैल्यूज। नेक्स्ट, नो अभी नहीं, थैंक यू नहीं बोलना है। अभी आप लोगों के लिए एक वर्क है राइटिंग स्किल में। इन दिस राइटिंग स्किल नाइदर यू हैव टू राइट एनी डायरी, नार यू हैव टू राइट एनी लेटर, नार यू हैव टू राइट एनी फॉर्मल और इनफॉर्मल एनी काइंड ऑफ लेटर और डायरीज और आर्टिकल, कुछ भी नहीं लिखना है। बट यू हैव टू राइट अ पोएम बाय योर सेल्फ अबाउट योर ओन मदर। ठीक है, आपको अपने माँ के लिए अपने से पोएम लिखना है, और एटलीस्ट यू कैन राइट द 8 to 12 लाइन्स पोएम अपने माँ के बारे में। यू नो more better than any other about your mother, so it is only you who can write the poem about your mother. Okay, so this is your homework and I will see it tomorrow. Surely you all will write a poem about your mother by yourself, and this should be decorated on a page by various colors. Thank you, and once again students, I would like to request you all, please subscribe this channel. Once again I would like to request, अगर रियली में अगर ये पोएम अच्छी लगी हो, पोएम के आंसर अच्छे लगे हों, और अब आपको समझ में आया हो इसके आंसर्स, चाहे वो पूरी पोएम हो चाहे पूरे पोएट के बारे में हो, एक एक क्वेश्चंस, so please subscribe this, and after that we will run the classes of English grammar from tomorrow. Okay, so be happy
at your home. Thank you very much to all my dear students.